अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? हाउ इज द लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, आजकल तो मौसम अब आलूद हुआ हुआ है, हाँ तो जी सर। रोज़ा भी। आप आ गए हैं वापस से के लेक्चर ले रहे हैं? अच्छा हाँ सर, नहीं मैं आ चुका हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो कितने स्टूडेंट्स इन हो चुके हैं? 17। ठीक है जी, चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पढ़ो इसलिए कि वो क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों का सिफारशी होकर आएगा। तो रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में अगर हमारी ये रूटीन हो जाए कि कम से कम रमज़ान में तो ज़रूर एक कुरान को रिवाइज़ कर लें, तर्जुमे से पढ़ लें, कुछ समझ आ जाए, तो अल्लाह का हमारे ऊपर एहसान होगा। तो ये अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। ओके, सो we are today on lecture 5, and we are covering various diagrams of UML. So today we are going to see two kinds of diagrams. That is, one is a state machine diagram, and other is a group of diagrams known as interaction diagram. In fact, sequence diagram, interaction overview diagram, communication diagram, and timing diagram, these diagrams are covered, are kind of interaction diagrams. And with the help of these interaction diagrams, we can very effectively model behaviors. बिहेवियर आप ये समझ लें कि अगर आपने कोई भी मेथड लिखा है, तो मेथड के अंदर जो लॉजिक आप लिखेंगे दैट ऑलवेज विल कवर द बिहेवियर। तो ये उस लॉजिक को बड़ी अच्छे तरीके से डिपिक्ट कर सकती हैं ये इंटरेक्शन डायग्राम्स। स्टेट मशीन कैन आल्सो डू, and activity diagram can also do that. So that's why all such diagrams like activity diagram, state machine diagram, and interaction diagram, these are called behavior diagram. Okay, so we start from state machine diagram. The behavior of an object that must respond to asynchronous messaging and how current behavior depends on its past is best specified by using state machine. तो अगर आपने मल्टीपल स्टेट्स दिखानी हो कि जी प्रीवियस स्टेट ये थी, उसके बाद कोई इवेंट अकर हुआ, नेक्स्ट स्टेट ये हो जाएगी और उसके बाद कोई और स्टेट हो जाएगी. So if we want to depict various discrete states of any object, any machine, any entity, then we make use of state machine diagrams. State machine diagram is a behavior diagram which shows discrete behavior of a part of a design system through finite state transitions. Transitions का concept है इसके अंदर और state का concept है. These are two fundamental concepts. State machine diagram can also be used to express the usage protocol of part of a system. तो प्रोटोकॉल भी इसके जरिए मॉडल किए जा सकते हैं. So we say that there are two kinds of state machines defined in UML 2.4 plus. For example, it's 2.5 now. One is called behavior state machine and other one is called protocol state machine. And following nodes and edges are typically drawn
in state machine diagram. One concept is of behavior state, then concept of behavior transition, then concept of protocol state and protocol transition, and then we have various pseudo states in state machine. This is the first example. You can call it a behavior of a reversible inverter AC in auto mode. तो अगर रिवर्सिबल एसी को ऑटो मोड में लगाएं तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा टेम्परेचर डिटेक्ट करके डिसाइड करेगा जो टेम्परेचर हमने सेट किया हुआ होगा कि कूलिंग करनी है या हीटिंग करनी है. फॉर एग्जांपल हम टेम्परेचर सेट कर देते हैं 22 डिग्री सेंटीग्रेड. तो अब 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ऊपर जाता है टेम्परेचर तो इट शुड स्टार्ट कूलिंग. जी कोई कह रहा है कुछ? एनी क्यूरी? अच्छा, so for example we set 22 degree centigrade as a triggering temperature. तो अगर 22 डिग्री से ऊपर जाता है टेम्परेचर so we may expect that it would start cooling. और अगर वो 22 डिग्री से नीचे जाता है टेम्परेचर तो then we may expect that it would start heating to adjust. So there might be some concept of too cold, too hot at temperature. For example हम कहते हैं 22 डिग्री है तो it will go on idle state. और आप ये कह सकते हैं कि फैन मोड, अगर कोई बिहेवियर हिस्सा हमने बनाया हो कि फैन उस वक्त चल रहा हो तो इस किस्म की कॉन्सेप्ट हम डिपिक्ट कर सकते हैं विद स्टेट मशीन डायग्राम. नाउ इट हैज़ वेरियस नोटेशंस. फॉर एग्जांपल दिस फील्ड सर्कल इंडिकेट्स एन इनिशियल स्टेट. इनिशियल स्टेट का मतलब है कि यहाँ से हमारी ट्रांजिशन शुरू होंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल गो टू आइडल स्टेट, then based on the conditions it can either go to heating state or it can go to cooling state, and from heating state it can go to cooling state or it can go to heating state, and similarly from cooling it can go to idle, and from heating it can go to idle. And there are different situation or different event based on which a decision has to be made. Okay, so this is a symbol for final state. Here from idle it will go to shutdown. Then there is concept of event. Event may have some sort of parameters, and the whole event along with parameter can trigger. Similarly, some actions can be performed. For example, we say that from activating state to once a ready transition occurs, a turn on action should be triggered, and then it should go to reach to active state. So generally states within a state are called nested states, and we can have a number of nestings. कोई लिमिट नहीं है, जितनी भी नेस्टिंग आप करना चाहें कर सकते हैं. Okay, so let me read this statement. A reversible inverter AC might transition from idle to heating state. अब हम idle से heating की बात करें. It can go from idle to heating state when an event such as too cold with parameter desired temperature triggers. ठीक है, सिमिलरली बाकी भी सिचुएशन इसी तरह होंगी. सो इफ वी टॉक अबाउट ट्रांजिशन कौन सी थी? जितनी हमें एरोज नजर आ रहे हैं, दीज एरोज आर
basically called transitions in UML state machine diagram. And a transition can have 5 parts. It may have a source state and it may have a target state. पहली तो बात ये है. तो अगर हम पीछे देखें तो अगर ये एक ट्रांजिशन ले लें हम, तो इसकी सोर्स स्टेट होगी आइडल और टारगेट स्टेट होगी कूलिंग. तो हर ट्रांजिशन की एक सोर्स स्टेट होगी और एक टारगेट स्टेट होगी. Similarly, it will have event triggers. The event whose recognition by the object in the source state makes the transition eligible to fire, providing its guard condition is satisfied. तो मतलब क्या हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल सोर्स स्टेट है तो कब ये टारगेट स्टेट में जाएगा, सोर्स स्टेट से टारगेट स्टेट में कब जाएगा, जब सोर्स स्टेट में कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो चुकी है और उसके बाद कोई ऐसा इवेंट अकर हुआ है. फॉर एग्जांपल आइडल में था तो ट्रिगर कोई हुआ है इवेंट टू गोल्ड का, तो ये हीटिंग स्टेट में आएगा. Then a guard condition. There is concept of guard condition. It is a Boolean expression that is evaluated when a transition is triggered by the reception of the event trigger. मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये फॉर एग्जांपल आपको ये एक ट्रांजिशन है, इस ट्रांजिशन में आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नजर आ रहा है इज थ्रेड. इट इज अ गार्ड कंडीशन. गार्ड कंडीशन इज रिप्रेजेंटेड विद a square bracket and it should be true. तो ये ट्रांजिशन अकर नहीं हो सकती, ये वाली ट्रांजिशन अकर नहीं हो सकती जब तक कि गार्ड कंडीशन ट्रू ना हो. So if there will is threat would be true, only then this transition will occur, that is idle from idle to tracking state. Effect. Effect is an executable behavior such as an action that may act on the object that owns the state machine and indirectly on other objects that are visible to the object. मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल ये फॉरवर्ड स्लैश में हमने ये एक तरह का एक्शन है कि हम कहते हैं कि जी 2 सेकंड के बाद क्या होना चाहिए, इट शुड सेंड C.is alive signal. So sending a signal is kind of action or activity that has to be performed. अगर इस डायग्राम के अंदर देखें तो टर्न ऑन इज एन एक्शन. हम कहते हैं कि जी जब रेडी ट्रांजिशन अकर हो तो साथ ही एक्शन भी परफॉर्म होना चाहिए, दैट इज टर्न ऑन एक्शन. दिस शुड आल्सो बी. ये एक्शन इज काइंड ऑफ इफेक्ट. एक्शन इज काइंड ऑफ इफेक्ट. इफेक्ट में एक्शन इज एन एग्जीक्यूटेबल बिहेवियर सच एज एन एक्शन. एक्शन इफेक्ट्स और भी होते हैं, और तरह के भी होते हैं. एक्शन इज आल्सो वन ऑफ द इफेक्ट जो हो सकता है. सो टू समराइज दिस स्लाइड, a transition can have 5 parts: source state from where transition starts, target states where transition reaches the state that is active after completion of the transition. और source state क्या है, the state affected by transition. If an object is in the source state, the ongoing transition may fire when object receives trigger event of the transition. Or there would be some event trigger, there should be some guard condition which should be true, and there should be some effect, that is some sort of action that has to be performed. So these are 5 parts of any transition. Any question on this slide? No sir. No sir. Okay. This is another example of UML जो मैंने अभी दिखाई भी है आपको. ये जो एक ट्रांजिशन
एक उसी स्टेट से निकल के उसी स्टेट पे ही वापस आ सकती है, यानी कि इसकी स्टार्टिंग स्टेट और एंडिंग स्टेट सेम ही है। सच टाइप ऑफ ट्रांजिशन इज कॉल्ड सेल्फ ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन पे कोई नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, दिस इज डिपिक्टिंग एन इवेंट ट्रिगर, कि नॉइस अकर होगी तो आइडल स्टेट से सर्चिंग में जाएगा। इसी तरह इवेंट कई किस्म के हो सकते हैं। टाइम इवेंट भी एक इवेंट हो सकता है। हम कहते हैं जी हर 2 सेकंड के बाद, फॉर एग्जांपल आफ्टर 2 सेकंड्स, 2 सेकंड के बाद एक इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। तो देर आर वेरियस काइंड ऑफ इवेंट्स। टाइम इवेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द इवेंट दैट मे अकर। This is an example of event trigger with parameter. तो हम कह रहे हैं जी ट्रिगर का नाम है टारगेट एट। तो अगर कोई टारगेट रिसीव हुआ है तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे टारगेट रिसीव होगा, किसी ग्रिड रेफरेंस पे या स्क्रीन पे किसी एक लोकेशन पर। तो टारगेट अकर होना, दैट कुड बी एन इवेंट अगेन। और पैरामीटर हो सकता है सम सॉर्ट ऑफ लोकेशन। देन इज थ्रेट इज अ गार्ड कंडीशन, दैट इज इट शुड बी ट्रू, यानी कि टारगेट हो सकता है फ्रेंडली एयरक्राफ्ट हो तो फिर वो थ्रेट नहीं होगा। तो थ्रेट होना भी ज़रूरी है ये ट्रांजिशन अगर होने के लिए। अगर थ्रेट भी है, टारगेट भी डिटेक्ट हुआ है, देन व्हाट एक्शन शुड बी परफॉर्म्ड, दैट ऐड target to with that particular location to a target list. फॉर एग्जाम्पल कोई कलेक्शन मेंटेन कर रहे हैं हम जिसमें मल्टीपल टारगेट्स हमने ऐड किए हुए हैं, तो ये एक्शन क्या करेगा कि जो भी टारगेट्स की एक कलेक्शन होगी उसके अंदर ये टारगेट भी ऐड कर देगा। तो दिस कुड बी एन एग्जांपल ऑफ एन एक्शन। और यहाँ पे इस ट्रांजिशन पे देखें कंप्लीटिंग ट्रांजिशन, इस पे कोई हमने इवेंट मेंशन नहीं किया हुआ। तो इवेंट मेंशन ना करने का मतलब यह है कि जब भी ये स्टेट अपना काम ख़त्म करेगी देन ट्रांजिशन कैन आल्सो अकर। एंड दिस इज, अगर कॉन्टैक्ट इवेंट अकर होता है तो ट्रैकिंग से एंगेजिंग में चला जाएगा। सो दिस इज हाउ वी मेक यूज ऑफ स्टेट मशीन डायग्राम। नाउ अ स्टेट कैन आल्सो हैव वेरियस काइंड्स ऑफ इफेक्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्शन इज आल्सो वन ऑफ द इफेक्ट। Actually, there are different kinds of effects. We say that entry effect, exit effect, internal transition effect, do activity effect, deferred event effect. और ये उनके आगे एक्शन परफॉर्म लिखे हुए हैं। ये एक्शंस हैं कि जी एंट्री इफेक्ट में ये एक्शन परफॉर्म हो, एग्जिट इफेक्ट में ये एक्शन परफॉर्म हो। फॉर एग्जांपल सेट मोड ऑफ ट्रैक एक्शन परफॉर्म हो, एंट्री इफेक्ट में सेट मोड ऑन ट्रैक हो। इंटरनल ट्रांजिशन, जब भी कोई नया टारगेट आता है तो ट्रैक डॉट एक्वायर एक्शन परफॉर्म हो, डू एक्टिविटी। सो व्हाट ऑल इज दिस, इसको हम वन बाई वन देखते हैं कि फॉर्मल इसकी क्या डेफिनेशन है। सो एंट्री इफेक्ट परफॉर्म सम सेटअप एक्शंस whenever entering a state no matter which transition led you there। तो जब भी किसी स्टेट में कोई ट्रांजिशन आएगी और तो स्टेट में एंटर होगी, कोई टोकन फॉर एग्जांपल ट्रांजिशन आके वहाँ पहुँचती है, तो इस स्टेट में जब भी कोई एंट्री होगी तो ये एंट्री इफेक्ट ने एग्जीक्यूट होना है। इट विल डू सम सॉर्ट ऑफ सेटअप एक्शंस और इस पे होंगे। देन इज एग्जिट इफेक्ट, इट विल परफॉर्म क्लीन अप एक्शन व्हेन यू लीव अ स्टेट नो मैटर विच ट्रांजिशन लेड यू अवे। हो सकता है बहुत सी ट्रांजिशन हो जो स्टेट से आउट हो रही हो, तो कोई भी ट्रांजिशन स्टेट से आउट हो, लेकिन जैसे ही स्टेट से बाहर निकलेंगे तो एग्जिट इफेक्ट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं या एक्शन है वो परफॉर्म होंगे। थर्ड वन इज इंटरनल ट्रांजिशन। वंस इनसाइड द स्टेट,
फॉर एग्जाम्पल स्टेट में ऑलरेडी स्टेट के अंदर ही है आप. यू विल इनकाउंटर इवेंट्स यू विल वांट टू हैंडल विदाउट लिविंग द स्टेट. तो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ट्रैकिंग हो रही थी और सॉरी ट्रैकिंग हो रही थी और नया टारगेट आ गया. तो ट्रैकर ने क्या करना है कि उस टारगेट को भी एक्वायर करना है. टारगेट ट्रैकिंग जारी रखनी है, ट्रैकिंग स्टेट से बाहर नहीं आना, और उसने नया टारगेट भी एक्वायर कर लेना है और उसको भी ट्रैक करना शुरू कर देना है. सो कोई भी स्टेट को छोड़े बगैर कोई नई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है अगर, देन इंटरनल ट्रांजिशन activity can be performed. Then is the to do activity. It specifies the work that is to be done inside a state after entry action is dispatched until it is interrupted by an event. तो इस डू एक्टिविटी का ताल्लुक है एंट्री इफेक्ट के साथ. जब भी आप एंटर होते हैं, आप कहते हैं जी एंटर होने के बाद कुछ सेटअप एक्शन होने के बाद फिर कौन सा काम मुसलसल कंटिन्यूस कौन सा काम करना है एंटर होने के बाद स्टेट में. तो आपने जो रेगुलर काम करना है जनरली किसी लूप के अंदर आप इस तरह के काम रखे जाते हैं, तो इसलिए डू एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है कि आफ्टर एंटरिंग इट शुड स्टार्ट द एक्शंस ऑफ फॉलोइंग द टारगेट्स. इस स्टेट में जब भी आएगा एंटर होगा, सेटअप एक्शन करेगा और उसके बाद इट विल स्टार्ट वर्किंग कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन फॉलो टारगेट एक्शन. Then is the defer event. While in the tracking state, you may want to postpone the response of the signal, such as self-test, perhaps sent by some maintenance agent in the system. तो फॉर एग्जांपल रेडार है वो ट्रैकिंग मोड में है और कोई मेंटेनेंस करने वाले बंदा है, उसने कोई सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करना है, तो सेल्फ टेस्ट को ये डेफर कर देगा जब तक कि ट्रैकिंग, क्योंकि इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, सो इट विल कंटिन्यू ट्रैकिंग एंड एक्टिविटीज़ लाइक सेल्फ टेस्ट वुड बी डेफर्ड because those activities may be performed later on, and tracking is important, and that's why we are providing the concept of deferring any particular event for this particular state, that is tracking state. हाँ जी, any question on this slide? हाँ सर, ये जो डेफर्ड का सिग्नल आता है जी, ये फिर एग्जिट होने से पहले एग्जीक्यूट होना मस्ट है. ये हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी सिमेंटिक्स में ये मेंशन नहीं किया हुआ कि ये बाद में एग्जीक्यूट होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन इसको ये इसके सिमेंटिक्स में इतना ही मेंशन किया हुआ है कि ये उसको डेफर कर देगा टिल द टाइम ट्रैकिंग इज बीइंग परफॉर्म्ड. इस स्टेट में जब तक रहेगा ये वाला सेल्फ टेस्ट नहीं होगा, जो यहाँ से इसकी सिमेंटिक्स हमें समझ में आती है. जब इस स्टेट से बाहर निकलेगा तो फिर अगर सेल्फ टेस्ट ऑलरेडी इन लाइन है तो ओनली देन इट विल परफॉर्म. यहाँ पे हमें ये सिर्फ ये सिमेंटिक्स ये बताती है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में जब भी ये वाला इवेंट अगर होगा इट विल बी डेफर्ड, इस स्टेट के अंदर नहीं होगा. ये हो सकता है कि वंस इट मूव्स आउट ऑफ द स्टेट, लेकिन उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे वो सिमेंटिक्स उसके मामले में खामोश है. जी, एनी अदर क्वेश्चन? ओके जी, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. So there is let's see some papyrus in action as well. For example ये देखें, ये आपको एक स्टेट मशीन बनाई हुई है
और ये इसका इनिशियल स्टेट है। यू कैन सी पैलेट में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स नज़र आ रहे हैं। ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। दिस इज अ ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन को अगर आप देखेंगे तो ट्रांजिशन में हम एनी ट्रिगर कैन बी अटैच्ड विद अ ट्रांजिशन। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ट्रिगर का क्या नाम है, चेक टेम्परेचर फॉर एग्जांपल। तो इस ट्रिगर को अगर हम लेट्स फाइंड चेक टेम्परेचर कहाँ पर है। ट्रिगर टू कोल्ड लोकेटेड कहाँ पर है, ये हमने देखना ही है। ये इवेंट टू कोल्ड। तो इस इवेंट को अगर आप देखें तो ये इवेंट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है सेपरेटली, और उस इवेंट को हमने अटैच किया है इसके साथ, अपनी ट्रांजिशन के साथ। और गार्ड कंडीशन भी लगा सकते हैं हम। ये गार्ड कंडीशन लगी हुई है, चेक टेम्परेचर, दैट कैन बी एडेड विद अ ट्रांजिशन। देन वी कैन और ऐड एन इफेक्ट विद द ट्रांजिशन एज वेल। पापायरस में ये है जो हमने इफेक्ट डाला है। इफेक्ट शुड बी अ बिहेवियर। तो बिहेवियर कई किस्म के होते हैं यूएमएल में। दिस इज अ फंक्शन बिहेवियर जो कि हमने एज एन इफेक्ट ट्रांजिशन के साथ अटैच किया हुआ है। और अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या नाम है इस बिहेवियर का, स्विच टू हीटर ट्रांजिशन। ये देखें इसके अंदर ये पड़े हुए हैं इस ट्रांजिशन के चाइल्ड के तौर पे। इसमें एक गार्ड कंडीशन पड़ी हुई है, एक स्विच टू हीटर फंक्शन बिहेवियर पड़ा हुआ है, और ट्रिगर टू कोल्ड पड़ा हुआ है। दीज आर इनक्लोज। दिस इज बेसिकली, अच्छा इसको हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ओसीएल यूज़ करने का बताया था। हम देख सकते हैं क्या चीज़ पड़ी हुई है ये। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, आई राइट जस्ट सेल्फ, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये एक ट्रिगर है। दिस इज अ ट्रिगर। अब ट्रिगर अगर नाम से नहीं, अब ये क्या चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या चीज़ है, तो इट इज़ अ फंक्शन बिहेवियर। ठीक हो गया। ये क्या चीज़ है, द कंस्ट्रेंट। गार्ड कंडीशन को डिप्लॉय करने के लिए कंस्ट्रेंट यूज़ कर रहे हैं हम। तो ये बिहेवियर डिपिक्ट कर रहा है, फंक्शन बिहेवियर, और ये हमारा ट्रिगर शो कर रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द कॉन्सेप्ट विच आर रिलेटेड टू ट्रांजिशन। अच्छा, स्टेट से रिलेटेड मैंने बताया था कि ये स्टेट को हमने बिल्कुल सिंपल रखा हुआ है। स्टेट कैन हैव अ स्टेट इनवेरिएंट, डू एक्टिविटी, सब मशीन स्टेट की हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल I can define a protocol state machine or a state machine that it will become the sub machine of this particular state. उस सब मशीन को हम, यानी कि स्टेट को हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करते कि इसकी इंटरनल सिमेंटिक्स क्या है, हम एक सेपरेट मशीन डिफाइन कर देते हैं। वो मशीन बताएगी कि एक्चुअली स्टेट की का बिहेवियर क्या है। तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय सब मशीन। फिर एंट्री इफेक्ट, ये जैसे एंट्री इफेक्ट डाला हुआ है, ये जो स्टेट है, इस स्टेट को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि मैंने सेट मोड ऑन एंट्री इफेक्ट डाला हुआ है।
सेट मोड ऑफ ट्रैक, एग्जिट बिहेवियर डाला हुआ है, डू एक्टिविटी फॉलो टारगेट डाली हुई है, डेफर ट्रिगर, ये डेफर ट्रिगर डाला हुआ है। तो ये this how we can attach various activities, various actions और effects with a state machine, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो पपायरस में तकरीबन इस किस्म की आपको इन्वायरमेंट मिलेगी। इट मे वेरी फ्रॉम टूल टू टूल। नाउ कमिंग ऑन टू कंपोजिट स्टेट। किसी भी स्टेट के अंदर हम सब स्टेट्स को रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि दिस इज एन एक्टिव स्टेट, दिस इज एन एक्टिव स्टेट, और एक्टिव स्टेट में हैव सब स्टेट्स। तो हम इसे कहेंगे, एक्टिव स्टेट को हम कहेंगे इट इज अ कंपोजिट स्टेट, एंड द इंटरनल स्टेट्स आर बेसिकली नेस्टेड डिसजॉइंट सबस्टेट्स। डिसजॉइंट हम इसलिए कहते हैं कि जो टोकन है इट विल बी एट वन स्टेट इन एट वन टाइम, इट विल बी इन वन स्टेट। दो स्टेट में इकट्ठा नहीं होगा टोकन, या इधर होगा इधर होगा इधर होगा इधर होगा। सो दीज आर डिसजॉइंट फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो let's see, a substate is a state that is nested inside another state called composite state. So these are four substates which are in active composite state, और किसी substate से भी ट्रांजिशन जा सकती है बाहर। The substate here are called disjoint substates because object is said to be in composite state and in only one of those substates at a time. An elegant way to model cancel behavior of if user cancels from any of the substate will go to an idle state. For example, हम ये मॉडल करना चाहते हैं कि इनमें से किसी भी स्टेट से कैंसिल किया जा सकता है, आइडल में जा सकते हैं आप। सिलेक्टिंग से भी जा सकते हैं, प्रोसेसिंग से भी जा सकते हैं, प्रिंटिंग से भी जा सकते हैं। तो अगर हम ये कंपोजिट स्टेट ना बनाएं तो फिर हमें हर एक से शो करना पड़ेगा, कैंसिल का एक ट्रांजिशन लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम एक कंपोजिट स्टेट बनाते हैं और सिंपली स्टेट से कैंसिल लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इट में किसी भी स्टेट से अगर स्टेट से आप स्ट्रेट अवे जा सकते हैं आइडल पे। तो इट इज एन एलिगेंट वे ऑफ डिपिक्टिंग द ट्रांजिशन cancel, that from any of the substate it can go to the idle state. तो अगर पपायरस में इन्वायरमेंट देखें तो कैसी नजर आएगी हमें? ये देखें, देयर इज अ स्टेट मशीन। स्टेट मशीन के अंदर हमने कंपोजिट स्टेट बनाई है और कंपोजिट स्टेट से हम सबस्टेट्स बनाई हैं। तो इट कैन, as per specification, you can model composite state in Papyrus. Then there is concept of history states in UML, state machine diagram. Here you can see H. H stands for shallow history state. So what we mean by shallow history state? When a transition enters a composite state, that is here it is backing up composite state, the action of nested state machine starts over again in its initial state. For example, हम copying state पे थे और यहाँ से हम बाहर निकल गए, तो जब हम दोबारा वापस आएंगे तो it will again start working from the initial state, that is collecting state, फिर copying पे आएगा, फिर cleanup पे आएगा। तो ऐसी सूरत में हम फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी अगर ये बाहर निकलता है स्टेट से, तो जिस स्टेट पे पहले था प्रीवियस
सिचुएशन में उसी स्टेट से आगे कंटिन्यू करना शुरू करें। तो इसका मतलब है कि वी नीड टू मेंटेन द हिस्ट्री, कि एग्जीक्यूशन की हिस्ट्री मेंटेन करनी पड़ेगी हमें, ताकि जब वापस आए तो हिस्ट्री स्टेट पे आए तो हिस्ट्री स्टेट से ये देखेगा कि प्रीवियस एग्जीक्यूटिंग स्टेट क्या थी। इट विल स्ट्रेट वे रीच टू दैट स्टेट। फॉर एग्जाम्पल इफ इट वॉज कॉपिंग स्टेट, तो हिस्ट्री स्टेट में देखेगा प्रीवियस स्टेट क्या थी, तो स्ट्रेट वे यहाँ पे आ जाएगा। और अगर इस स्टेट पे था तो स्ट्रेट वे यहाँ पे आ जाएगा। तो हिस्ट्री स्टेट का कॉन्सेप्ट ये है कि it maintains the execution history. However, there are times you would like to model an object so that it remembers the last state that was active prior to leaving the composite state. History state allows composite state that contains a disjoint substate to remember last substate that was active in it prior to the transition. मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसकी फॉर्मल टेक्स्ट है। In figure 226, you represent shallow history state as a small circle containing symbol H, जैसे ये आपको नजर आ रहा है। इसको हम कहते हैं shallow history state. If you have more than one levels of nesting, if you have more than one level of nesting, shallow history state remembers only the outermost nested state. जैसे यहाँ पे एक ही लेवल है, लेकिन हो सकता है नेस्टिंग हो, कलेक्टिंग के अंदर भी सब स्टेट्स हों, कॉपिंग के अंदर भी सब स्टेट्स हों। So in this situation, deep history H star or steric remembers the innermost nested state of at any depth. तो इसका मतलब ये हुआ कि यूएमएस स्टेट मशीन डायग्राम में एक तो शैलो हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है और दूसरा डीप हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। शैलो हिस्ट्री कॉन्सेप्ट में ये होता है कि हम सिर्फ एक लेवल तक डीप जा सकते हैं, जबकि डीप हिस्ट्री में वी कैन गो टू एनी नेस्टिंग लेवल। इट शुड बी एबल टू मेंटेन द हिस्ट्री ऑफ अप टू एनी नेस्टेड लेवल। अगर हम पपायरस की बात करें तो पपायरस स्पोर्ट्स, ये आपको शैलो हिस्ट्री का सिंबल नजर आ रहा है और ये डीप हिस्ट्री का सिंबल नजर आ रहा है। सो इट कैन बी यूज्ड इन papyrus. Another concept is of orthogonal state regions. Concept of orthogonal regions. तो अगर हमने पैरेलल एक्टिविटी या पैरेलल एग्जीक्यूशन डिपिक्ट करनी हो, then we can use the concept of orthogonal regions. जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, the upper one is one region and lower one is another region. और जब आइडियल स्टेट से ये मेंटेन ट्रांजिशन अगर होगी, तो जब इस मेंटेनेंस स्टेट में आएगा तो दोनों एक्टिविटीज टेस्टिंग और कमांडिंग बोथ आर गोइंग टू execute in parallel. So orthogonal states are depicted for showing activities in parallel और concurrent activities को show कर सकती हैं। I hope it's clear. Yes, sir. Yes, sir. These two regions let you specify two or more state machines. तो ये समझ लें कि एक छोटी स्टेट मशीन ये हो गई और एक स्टेट मशीन ये हो गई, that execute in parallel in the context of enclosing object. This figure shows when control passes from idle to maintenance state, control then forks to two concurrent flows. ये जो concurrent flows हैं, ये दोनों पैरेलल शुरू हो जाएंगे, तो आप ये समझ रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअली एक तरह की फॉकिंग हो रही है। दिस इज अ फॉक। कॉन्सेप्चुअली एक फॉकिंग हो रही है कि दोनों एक्टिविटीज पैरेलल शुरू हो जाएंगी।
और अगर ये दो एक्टिविटीज़, अगर इसे आइडल स्टेट पे वापस जाना है तो ये उस वक्त तक वापस नहीं जा सकता जब तक कि दोनों एक्टिविटीज़ कंप्लीट ना हो। जब दोनों पे एंड पे पहुंचेगा, ओनली देन दिस जॉइन विल बी पॉसिबल। तो इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ काइंड ऑफ इम्प्लिसिट फॉकिंग एंड इम्प्लिसिट जॉइनिंग। आई रिपीट, इम्प्लिसिट फॉक और इम्प्लिसिट जॉइन, जो कि हमने उसका एलिमेंट नहीं लगाया फॉक का या जॉइन का, लेकिन फिर भी हो रहा है ये काम। फर्दर मोर वाइल इन द कमांडिंग रीजन, यानी कमांडिंग रीजन की अगर बात कर रहे हैं हम, द एनक्लोजिंग ऑब्जेक्ट विल बी आइदर इन वेटिंग और कमांड स्टेट। तो यहाँ पे रिपीटिशन एक तरह की लूप नज़र आ रहा है आपको, वेटिंग से कमांड में, कमांड से वेटिंग, वेटिंग कमांड, ये इस तरह चलता रहेगा। If one of the orthogonal region reaches its final state before the other, the control in that region waits at its final state. तो फॉर एग्जाम्पल ये टेस्टिंग वाला यहाँ पे फाइनल पे पहुँच गया है, लेकिन ये लूप कर रहा है, तो ये यहाँ से वापस नहीं जाएगा टिल दैट टाइम ये लूप ख़त्म हो और ये आगे अपनी फाइनल स्टेज में आए। जब दोनों फाइनल स्टेज में आएंगे, ओनली देन दिस एक्टिविटी ऑफ जॉइनिंग बैक टू आइडल विल अकर। Any question on this slide? सर जी कैंसिल इवेंट आता था अपोजिट स्टेट में, तो वो निकल आता था किसी भी स्टेट पे, वो इस रीजन पे कैसे अप्लाई होगा? क्योंकि ये दोनों रीजन जब तक खुद कंप्लीट नहीं होते आगे एग्जिट नहीं कर रहे, लेकिन कैंसिल का इवेंट आएगा तो क्या ये वेट करेंगे एक दूसरे का? मेरा ख्याल है इसमें कैंसल एप्लीकेबल नहीं है, इस पे इनको एंड पे पहुंचना होगा, तो फिर ये ज्वाइन ये अकर होगा कैंसल इवेंट। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, तो मेरा ख्याल है इस तरह होगा कि इसमें ये एक्टिविटी जब तक एंड नहीं होंगी ये वापस नहीं जाएंगी। जी, आई होप आई हैव बीन एबल टू जी सर, एक्सप्लेन। यही लग रहा है। ओके जी, यहाँ पे देखें, here this slide is explaining the concept of explicit versus implicit fork and joint transitions। अब यहाँ पे यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल, ये हम कहते हैं कि जी जब मेंटेन आइडल से मेंटेन स्टेट आएगा तो ये दोनों एक्टिविटीज पैरेलल शुरू हो जाएंगे, तो एक तरह का फॉकिंग है। एक यहाँ पे आपको नजर आता है एक्सप्लिसिट फॉक नजर आ रहा है यहाँ पे डायग्नोज के नाम से। तो अगर यहाँ पे ट्रांजिशन आती है फॉक में, तो यहाँ से हमने दो ट्रांजिशन शो किए हैं, तो इसका मतलब है कि सेल्फ डायग्नोसिस, अगर इस रूट से आते हैं हम तो सेल्फ डायग्नोसिस स्टेट पे आएगा और साथ ही फाइनल स्टेट पे आ जाएगा। ये दोनों एक्टिविटीज पैरेलल होंगी, लेकिन यहाँ पे आके ये क्या करेगा, यहाँ पे आके यहाँ से ये इधर आएगा, इधर आके यहाँ पे रुक जाएगा और इट विल वेट कि यहाँ से भी इसको कोई ट्रांजिशन अकर हो। अदरवाइज सेल्फ डायग्नोसिस पे आ जाएगा और सेल्फ डायग्नोसिस में अगर कोई एरर आता है तो फिर ये दोनों एक्टिविटीज़ को बंद करेगा एंड देन इट विल गो टू रिपेयर। तो यहाँ पे ये फोर्सफुली हम ये किसी भी जगह पे होगा, लेकिन जब यहाँ से बाहर निकलेंगे हम तो ये दोनों को क्लोज करेगा, दोनों को क्लोज करके उसी वक्त इमीजिएटली टर्मिनेट करेगा इमीजिएटली एंड देन इट विल गो टू द रिपेयर स्टेट। तो एरर से बाहर जाने का मतलब है कि इट इज अ काइंड ऑफ इम्प्लिसिट ज्वाइनिंग, कि इन दोनों को जहाँ भी है इनको वाइंड अप करके और ये इट विल स्ट्रेट वे गो टू रिपेयर स्टेट। तो एरर इज काइंड ऑफ implicit join, maintain is kind of implicit fork,
Diagnose is kind of explicit fork, and disjoin is, and disconnect is an explicit join. तो दिस इज व्हाट हैज़ बीन एक्सप्लेन, यहाँ पे जो फॉर्मली एक्सप्लेन किया गया, ये जो मैंने अभी आपको बताया है, ये एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे. ओके, सो हेयर वी हैव, अगर हम पपायरस को देखें तो पपायरस में आपको ये ऑर्थोगोनल रीजन सपोर्ट करता है. ये दिस इज रीजन 1 एंड दिस इज रीजन 2. रीजन ऐड कहाँ से करवाते हैं हम, ये आपको नज़र आ रहा है. रीजन हम ऐड करवा सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक रीजन मैंने और ऐड करवा दी यहाँ पे. तो अब ये जो स्टेट्स थी ये हमारी इस रीजन में थी. मे बी आई कैन ट्राई टू ब्रिंग इट ओवर हेयर. तो ये देखिए मैंने क्या किया है, मैंने एक ट्रांजिशन बनाई है विच इज़, इसके दो कुछ एलिमेंट्स रीजन 1 में है, कुछ एलिमेंट्स इसके रीजन 3 में है, और कुछ एलिमेंट्स इसके रीजन 2 में है. सो दिस हाउ वी कैन क्रिएट मल्टीपल रीजन्स विद इन अ स्टेट मशीन. अगर मैं इसको कंसोल से जाके फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ ऑर्थोगोनल रीजन्स, ये ऑर्थोगोनल रीजन, ये स्टेट मशीन नज़र आ रही है आपको, और इसके अंदर आपको नज़र आ रहे हैं 3 रीजन नज़र आ रहे हैं, एंड देन देयर आर वेरियस एलिमेंट्स इन वेरियस रीजन्स. सो ये ट्री व्यू है और ये ग्राफिकल व्यू है. सो दिस इज, मैंने आपको कोशिश की है बताने की कि कॉन्सेप्ट्स कुछ स्टेट मशीन के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स ही बताए हैं आपको, और फिर मैंने आपको बताया कि पायरस इसको कैसे हैंडल कर रहा होता है. पायरस में भी स्टेट मशीन सपोर्टेड है, एंड यू कैन सी हियर व्हाट वी कैन डू. तो यहाँ पे हम ब्रेक लगाते हैं. आफ्टर इट एट दिस पॉइंट इट इज़ 3:51. एक क्विज हम लेंगे, क्विज का टाइम है 4 बजे, और इट विल बी ऑन LMS पे होगा क्विज. 4 बजे एक्टिव होगा. 10 क्वेश्चन होंगे इसमें, और 7 मिनट का टाइम होगा, और यू विल गेट 7 मिनट्स टाइम, और 10 MCQs होंगे. वो कर लें, उसके बाद फिर देन वी विल रिज्यूम द लेक्चर फ्रॉम 4:15 से फिर हम आगे चलेंगे, लेक्चर को रिज्यूम करेंगे. तो आपका इसके दरमियान में अपना क्विज के लिए तैयार हो जाएं. LMS में लॉगिन कर लें, वहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा क्विज. क्विज आपको विजिबल हो जाएगा 4 बजे क्विज विजिबल हो जाएगा आपको. ठीक है जी, और 4:15 बजे हम विल रिज्यूम आवर लेक्चर. ओके, सो आई क्लोज रिकॉर्डिंग.